So hi friends, welcome to our channel Next Gen Study. In this video we will learn about chapter 4 of physical education of class 12. The name of this chapter is physical education and sports for differently abled persons. So for the PPTs you can or PDF you can follow our Telegram channel, join there, and for more questions and any query you can follow us on our Instagram channel. So let's begin. We will first start with the concept of disability and disorder. So first of all, what is the meaning of disability? It means inability to do work, or it is the state of an individual in which he or she cannot work efficiently. So let's explain it like this, understand it like this. For example, this is a person, okay? He got his leg broken, so he won't be able to play a cricket game, okay? So this is disability for him. Disability is not only just a physical disability, but it also consists of mental issues also. For example, अगर आपको मानसिक तनाव है, आपने किसी कोई ऐसा न्यूज़ सुना या something is really frustrating you, so that also count in disability. Okay, so what is the meaning of disorder? These are one liner question. You just need to write all this thing in your exam. These are one liner question. These are very important. This will really give you like star marksing star marks. So in your answer set. So what is meaning of disorder? It is defined as bleep in the usual function of the person. Uh, what is the meaning of bleep? So let's understand like this. Bleep is a state of confusion. Whenever person get confused, okay, in normal course of functioning, it is said that he has some kind of disorder. Okay? So like types of disability and their causes. Types of disability. First of all, we will learn about consecutive disability. Disability which create obstruction for an individual to store, process and produce information. For example, if you are having any issues, if you are having problem in remembering something like answers, or like some event of your past or some event of same day, also whether you had lunch, whether you had bread or you have poha in your breakfast and you can't remember it, this also count into the consecutive disability. Difficulty in reading, writing and speaking, this also forms into the same sphere. Intellectual disability. So like this is like different type of disability. In this disability what happen is that the disability which affect the learning, communication, problem solving and judgment of a person is called intellectual disability. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत बड़ा आदमी मतलब some person of more than your age, okay, you ask him something and he is like क्या मतलब some he takes long time to solve that problem. If just a simple sum, for example, you are playing a situation game, okay, and you provide him some situation and he take really long time in solving that, so this is intellectual disability. कभी कभी किसी पर्सन को किसी सिंपल चीज़ का भी सॉल्यूशन खोजने में बहुत टाइम लगता है. This is intellectual disability. Third number is physical disability. The disability which affect the individual physical function, mobility or stamina is called physical disability. किसी पर्सन की मतलब बॉडी में फिजिकल मतलब सिंपल सा है कि बॉडी में ओके सम टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो, चाहे उसका लेग सोचा हो या उसका स्टेमिना वीक हो या उसको मूवमेंट में दिक्कत हो रहा हो, दिस ऑल फॉल इनटू फिजिकल डिसेबिलिटी. so from this so from this we really understood that there are three types of disability. Okay, if questions come into exam like what is disability, write its types of disability and how they are caused. So you are going to write that definition and then this one, and after this the cause of disability.
The causes of disability you can also make it by yourself, but these are the few you can note it down. First one is genetic cause. Sometime it happens, कभी कभी ऐसा होता है कि you get some disorder from your like parent gene, like some kind of that fall into genetic causes. Poverty also lead to disability because of poor sanitation, improper nutrition, little access to education. अब इसका मतलब समझते हैं कि अगर आपको ठीक से खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यू विल गेट वीक. इफ़ यू गेट वीक you will become physically disabled. Okay, your mind will stop working, you will get intellectual disability, and if you have less access to education then also you will get intellectual disability. So now disability can be due to accident. अगर आपको कभी एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया या आपको सदमा लग गया, कोमा में चले गए, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसेबिलिटीज. Malnutrition is also one of the cause of disability. I have already said improper nutrition. War is one of the cause of the disability. एक्सीडेंट से हो सकता है, युद्ध में भी तो युद्ध में मतलब जंग में भी तो आपको डिसेबल हो सकते हैं आप, चाहे फिजिकली हो या मेंटली. आपको जैसा देख ली जो आपको नहीं देखना चाहिए था एंड आपके माइंड पे उसका असर पड़ा, आप उस समय तो डिसेबल हो सकते हैं. न्यूक्लियर एक्सीडेंट. अब लेट्स हैव लाइक वेरी फ्रैंक व्यू ऑन दिस. हम लोगों ने बहुत बार टीवी में देखा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ एंड समबडी गॉट रियली पावरफुल, ठीक है, उससे पावर उसको मिल गया एंड इज़ लाइक he become evil or he is become superhero. So nothing happen like that. Nuclear reaction say one thing will really happen, you will have some disability in your body or you will really meet death. Poor approach to healthcare. For example, like I am going to take the example of polio. अगर आपको पोलियो का ड्रॉप्स नहीं मिलता, ठीक है, if somebody didn't have that polio drops, okay, and might be in any case he gets polio, तो डिसेबल हो जाएगा. पोलियो का होता है कि आप डिसेबल हो जाते हैं, फिजिकली डिसेबल. तो प्रॉपर अप्रोच टू हेल्थ केयर भी आपको डिसेबिलिटी की तरफ लीड कर सकता है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर पे. पहला है आपको अटेंशन डिफ्लेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD. This disorder will affect how will can someone sit still. पहला इतना का मतलब समझते हैं. ये डिसऑर्डर जो है इफ़ेक्ट करता है कि एक पर्सन जो है कितनी देर तक शांति से या एक फोकस के साथ बैठ सकता है और अटेंशन भी पे अटेंशन दे सकता है, ठीक है. मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि दे बिकम रेस्टलेस, थोड़ा देर पढ़ने गए रेस्टलेस हो जाते हैं, दे इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड, दे फॉरगेट अबाउट देयर डेली एक्टिविटी. उनका डेली एक्टिविटी क्या होता है, जैसे रूटीन वो गलत सड़िया के लेके चले जाते हैं स्कूल में, ठीक है, होमवर्क ले जाना भूल जाते हैं. दे विल हैव प्रॉब्लम इन concentrating especially while reading. They will easily get frustrated, बहुत easily frustrated हो जाते हैं. This is like symptom of ADHD. और now we will read causes of ADHD. पहला जेनेटिक फैक्टर. इसमें एक मतलब मैं की पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर में से कोई भी पार्ट में से अगर कोई भी अगर काउज पूछा जाए तो यू जस्ट मेक इट फिक्स. जेनेटिक डिसऑर्डर, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस और ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन इंजरी, ये हमेशा कॉमन आपको मिलेगा. ये अगर तीनों कुछ भी होता है तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे डेफिनेटली असर पड़ेगा. तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कॉज ऑफ ADHD. जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हो सकता है, ब्रेन इंजरी के कारण हो सकता है, लो बर्थ वेट के कारण हो सकता है, डाइट अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिला उसके कारण हो सकता है, ये एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण हो सकता है. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर के ऊपर. सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, SPD. SPD स्पेस पेट्रोल डेल्टा नहीं समझ लीजिएगा, ये SPD दूसरा है. द डिसऑर्डर इन विच द ब्रेन हैज़ डिफिकल्टी टू रिसीव एंड प्रोसेस टू रिस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस. हम लोग के बॉडी में 6 सेंस होता है, ठीक है, टोटल 6 सेंसेस है.
अगर आपको कोई टच करता है और आपके ब्रेन को ये पता नहीं चलता कि आप टच हुए हो, आपको ठंडा गर्म का एहसास नहीं होता, ठीक है, इन दिस केस यू आर सफरिंग फ्रॉम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर SPD. लाइक व्हाट आर द सिम्टम्स? पर्सन में स्कीम वेन टच्ड, चिल्लाने लगेगा, डर लग जाएगा उसको। दे मे रिमेम अनरिस्पॉन्सिव टू एनीथिंग अराउंड दैम, उनके आसपास कुछ हो रहा है उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। पीपल ऑल्सो फेल टू गिव रिस्पॉन्ड टू एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, बहुत गर्मी को भी और कोल्ड और पेन को भी उनको एहसास नहीं होगा, क्योंकि उनके नर्व से उनका जो उनका सेंसेस है, उनसे सेंसेस से उनके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रहा ठीक से। कॉजेज़ क्या हो सकता है? जेनेटिक कॉजेज़, लो बर्थ रेट, फिजिकल कॉजेज़, और इसमें आप वो भी डाल सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस वाला। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी डाल सकते हैं, ठंडा अगर बहुत ज़्यादा है तो ठंडा में आपको किसी का टच फील नहीं होता, आपका बॉडी नब पड़ जाता है। अब आते हैं Austin spectrum disorder, ASD, the disorder in which person found difficulty in social interaction, communication and try to do repetitive behavior is called ASD. This often disorder affect the development of the person. हम लोग समझते हैं कि ये होता है, ये बेसिकली आजकल जो डिसऑर्डर होता है ये नॉर्मल डिसऑर्डर है, वन ऑफ द नॉर्मल डिसऑर्डर। इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ अ सोशल मीडिया जनरेशन, ओके। यहाँ पे पीपल अगर सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, दे विल स्टार्ट हैविंग ये लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे विल स्टार्ट गेटिंग डिप्रेशन, एंड उसके बाद वो ऐसा हरकत करने लगेंगे कि ऐसा फील होगा कि उनको ESD है। तो कॉज क्या है? जेनेटिक, मैंने पहले भी बोला था, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि उनका वेट कम था बर्थ के टाइम पे, ये भी दे सकते हैं, या टॉक्सिक सब्सटेंस से हो गया। इन्वायरमेंटल भी दे सकते हैं, इफ़ द मदर इज़ एक्सपोजिव टू हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड इन एयर पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल, इस केस में भी होता है। अब आते हैं हम लोग ऑपोजिशन डिफेंडेंट डिसऑर्डर, ODD, द डिसऑर्डर इन विच पर्सन इज disobedient, behave like rebel, argue with adult, refuse to obey, exhibit anger and aggressions, and always try to disturb the surrounding. आजकल के बच्चे हर छोटी बात पे झगड़ने लगेंगे, हर छोटी बात पे गुस्सा दिखाने लगेंगे, बड़े से लड़ने लगेंगे, उनका कहा हुआ रिफ्यूज़ करने लगेंगे। इसका मतलब है ओपोजिशन डिफिसेंट डिफेंट डिसऑर्डर, ODD है उनको। कॉजेज़ क्या है? जेनेटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, राइट। सोशल फैक्टर वी विल डिस्कस राइट नाउ। उससे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर क्या है? इन दिस सोशल, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड कि हम लोग सोशल जनरेशन में, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ सोशल मीडिया पे है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अटेंशन ओवर देयर, इफ़ योर फ्रेंड आर निगलेक्टिंग यू, इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इशू, आप वहाँ नहीं बोल पाएंगे। आप उसका सारा चीज़ आप अपने घर पे या अपने बड़ों के सामने आप विरोध जाहिर करके महसूस करेंगे, आप गुस्सा करके सबको दिखाएंगे। अब आते हैं हम लोग OCD पे। ये क्या होता है? द मेंटल डिसऑर्डर दैट काउजेज रिपीटेड अनवांटेड थॉट टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड थॉट्स, ही और सी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। अब ऑब्सेस हो जाते हो इस डिसऑर्डर के में, आप ऑब्सेस हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर। आपको लगता है आप गंदे हो, आप भर भर नहाने चल जाओगे। आपको लगता है कि आप खुद को चोट पहुँचा लोगे, आप बहुत संभल संभल के काम करोगे। आपको लगता है कि आप कोई गलती ना कर लो, आप हर काम परफेक्टली करने की कोशिश करोगे। सो इसका भी रीज़न सिंपल है, इसका भी रीज़न है आपको जेनेटिक फैक्टर के कारण, लैक ऑफ एस्ट्रोजन और डिप्रेशन के कारण। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं डिसेबिलिटी एथिक्यूट्स पे। अब एथिक्यूट्स क्या होता है? A set of guidelines dealing especially with how to approach person with disability. These are the set of guidelines, okay, which is dealing, these are the rules, or these are the like general manners which deal with how to approach a person with disability, whether he is physical disabled, intellectual disabled, or he is having some kind of mental disability, okay. So what are the this what are these guidelines, okay, what are these etiquettes? These are one of the most important question which are asked in exam.
This question are connected with one more question, and that is advantage of physical activity for children with special needs, or the examiner can connect it with strategy to make physical activity accessible for children with special need. So we will look how they connect these questions. First of all, we will read about the general disability and ethics. In the case of introduction to a person with a disability, it is appropriate to shake hands. The first and foremost, if you are meeting some person which has disability, okay, go and shake hands with it. This will give them a warm feeling, okay. Second thing, leaning or hanging on the person wheelchair should be avoided. Never lean or never hang on a person wheelchair, okay. This is really bad. This really shows that you don't have attitude and you don't have manner for them. Always listen carefully and attentively when listening to a person who has difficulty in speaking. When you are listening to some person who has really difficulty in speaking, try to listen to each and every words of him. Okay, do not interrupt him in middle. Let him complete first. This all are etiquettes. Okay. अगर आप ऐसा नहीं करते तो in case like you are not listening him like really good, okay, you are not listening him properly, you might miss something that he is trying to explain you. Always introduce yourself to a blind person by your name. जब भी आप किसी अंधे पर्सन से मिलो या जो देख नहीं सकता है, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ योर नेम सो दैट ही कैन रिमेंबर योर नेम एंड ही कैन कॉल इन फ्यूचर बाय योर नेम, ओके. अगर आप उसको अपना नाम नहीं बताओगे तो हाउ वुड ही कॉल यू, वो कैसे आपको बुलाएगा. इफ़ यू नीड टू लीव अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंड देन इन्फॉर्म हिम बिफोर लिविंग. अगर आप किसी मतलब ब्लाइंड पर्सन के पास हो, उससे बात करो, ठीक है, एंड आपको आप कहीं पे जाना है, आप उसको छोड़ के अकेले जा रहे हो या मतलब किसी ग्रुप में ही छोड़ के जा रहे हो किसी और के साथ, तो बोल दो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ही वुड बी थिंकिंग कि आप उसके पास हो और वो आपसे बात करते रहे, ठीक है. तो दिस इज़ रियली बैड. वो बोलते रहेगा एंड आप वहाँ हो नहीं, चले गए आप उसको बिना बोले हुए, थोड़ी देर बाद वो फील करेगा कि छोड़ के चले गए. ही विल रियली फील बैड फ्रॉम इनसाइड. Avoid asking personal question. So in every etiquette, whether it is a disability etiquette or a general etiquette, any kind of etiquette, it is always suggested कि never ask personal question in first meeting. Avoid doing such thing. पर्सनल क्वेश्चन पूछने पे आदमी को अंदर से ख़राब लगने लगता है. सो नेवर आस्क दैट, ओके. फिर लास्ट है आपको, ट्राई डू नॉट help unless they are really in need of it. If someone is disabled, okay, and you are trying to help them, this is very good. If you are trying to help them, this really shows that you are a warm person, you have a good heart, okay. But don't try to help them unless they really need it, because अगर आप किसी को help कर रहे हो एंड वो डिसेबल पर्सन है तो दे विल थिंक दैट कि आप उनको इसलिए मदद कर रहे हो क्योंकि वो डिसेबल है, एंड दिस विल रियली हर्ट देम. सो नेवर ट्राई टू हेल्प देम अंटिल दे आस्क और दे आर रियली इन नीड ऑफ दैट. अब लोग आते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. अब फिजिकल एक्टिविटी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या एडवांटेज होता है एक बच्चा जो रियली स्पेशल नीड्स, मतलब कोई डिसेबल हो मेंटली फिजिकली. तो पहला होता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ उसका फिजिकल इम्प्रूवमेंट होगा, उसके बॉडी में मतलब जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उसका मूवमेंट ईजी हो जाएगा. दूसरा होता है मेंटल इम्प्रूवमेंट. इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द मोर यू एक्सरसाइज, द मोर यू योगा, यू विल बी वेरी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड, ओके. आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है. रिड्यूस द स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. इससे आपको रिड्यूस होता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से. Improve social interaction. Once you are like totally free from your mind, you start interacting with peoples, and it also reduce the health complications. आपको हार्ट डिजीज या किसी टाइप ऑफ डिजीज़ अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो इससे आपको किसी भी तरह से बीमारी से बचाता है. सो इफ़ यू विल जस्ट नोटिस दैट कि दिस ऑल आर इन अ सीरीज. सो ट्राई टू कनेक्ट लाइक दिस कि पहला तो आपको अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा पहले कि आपका फ़िज़िकल इम्प्रूवमेंट होगा. दूसरा, आप फिज़िकल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपका मेंटल इम्प्रूवमेंट होगा. आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपका
सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, आपको गुस्सा कम आएगा, आप डिप्रेशन में नहीं रहोगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप डिप्रेशन से आपको ख़त्म हुआ, आप लोगों से इंटरेक्ट करने लगोगे, आप फ्री माइंड हो गए। फिर आपको जब फ्री माइंड हुए, आपका सब कुछ ठीक है, आपका फिजिकल भी ठीक है, तो आपकी जो बॉडी पे अब जो हेल्थ इश्यूज़ है वो कम होने लगेंगे। तो ट्राई टू कनेक्ट लाइक दिस, ट्राई टू मेक इट अ स्टोरी। अब आते हैं स्ट्रैटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब लाइक व्हाट आर द स्ट्रैटेजी दैट कैन बी यूज्ड। So I have already said you few minutes ago कि the examiner would connect 2 or 3 questions, so they can connect like that. Advantage of physical activity for children with special needs, and what are the strategy that can make physical activity accessible for the children with special needs. Okay, so they can connect it like this way. So first and foremost, physical activity must be based on the interest of children, whether which doesn't matter what kind of activity it is, it should be always based on the interest of the children. Okay, like if a person want to play football, you should provide him football, not you should force him like to go and play cricket or hockey, something like that. To second, equipment required to the physical activity should be according to the interest of children. अब इसको समझाते एक छोटे से पिक्चर के एग्जांपल से. This is a person, he is physically handicapped, his legs are not working. Okay, so he is playing that game on this wheelchair. If you will give him बैसाखी, अगर आप इसको बैसाखी दे देते हैं, now you say okay, go and play this game, it will be very uneasy for him to. So the equipment related to physical activity should be according to the need of children. Whatever your need is, you should provide, like what are the children need it, you should provide equipment related to that. ऐसा नहीं कि आपके नीड के हिसाब से आप इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर फोर्सिंग योर नीड ओवर दैम, नो नेवर डू दैट. स्पेसिफिक इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड. किसी गेम को खेलने के लिए, किसी एक्टिविटी को खेलने के लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है. फॉर एग्जांपल, आप चेस स्टेशन पे, बस स्टेशन या किसी स्टेशन पे बैठ के नहीं कर सकते. यू नीड अ प्लेस विथ पीस. ओके, सो this statement mean to say that a specific environment should be provided for that. Rules should be modified according to the need of the children with disability. अब let me give you one example कि आप एग्ज़ाम में देखे होंगे कि हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं आंसर लिखने के, चाहे वो ये आइज से हैंडीकैप हो, या आपको क्या कहते हैं सुन नहीं सकता हो, या बोल नहीं सकता हो, या वो लिखने उनको नहीं आती हो, तो उसके लिए स्पेशली वो रूल्स होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट मीन्स टू से दैट कि रूल्स को मॉडिफाई करना चाहिए जैसा नीड हो और जैसा डिसेबिलिटी हो चिल्ड्रन का. एंड लास्ट, चिल्ड्रन प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. इससे पहले अगर आपने कोई इवेंट कराया, कोई एक्टिविटी कराया, कोई गेम करवाया, तो उसमें जो चिल्ड्रन का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आप वापस ये ऐसा कोई एक्टिविटी करवाएं. दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम. ओके, so with this we come to the end of this video. I hope you like this video. If this video was really knowledgeable, so please like our channel, please subscribe our channel and like this video. And if your friend needs this kind of video, please share to them also, and do subscribe so that we can really post such video regularly. Thank you for watching. Stay tuned.